The air quality in the national capital, which has dipped once again, and a number of Delhi neighborhoods have remained in the severe category on Wednesday morning. According to the Central Pollution Control Board, the AQI stood at 430 in Anand Vihar, 423 in Punjabi Bagh, 417 in Akipuram, 411 in Patparganj, and 413 in Rohini at 6 a.m. today. My colleague Akshat Gupta joins us from Rajiv Chowk and Anil Chaudhary with us from Ghaziabad. Akshat, if you can first take our viewers through what is it that you see around you today at Rajiv Chowk? Quality continues to plummet, and Delhi continues to remain shrouded in a thick layer of toxic smoke. If I can just show you the visuals also where I am standing right now, there you can see there is an air quality index monitor which has been placed here at the inner circle in Connaught Place, and it clearly shows that the air quality levels are more than 400, which is of course in the severe category, and it is despite the ban on the firecrackers on the Diwali night. And there, if we just see, there is a building few hundred meters away only, which is even not visible. So of course it clearly signifies that the visibility now has also been reduced because the air quality has dipped to the severe category, and it also comes because of the unfavorable meteorological conditions and the dip in temperature in the national capital. But to just give you in a perspective, the ban on the firecrackers was flouted by the people of Delhi at many places, and after the Diwali night, the next morning, the AQI plummeted to very severe category. And of course, the Supreme Court also and the state government also has imposed a ban on the firecrackers, but still it was flouted. Okay. And the politics also is being played. Okay, Akshat, we're going to go across to Anil, but I'm going to quickly give you an opportunity since you're in Connaught Place right now, and I see a bunch of people around you who've actually managed to come out. Maybe they've come out for morning walks, maybe people are heading to work from that area. If you can find some people that we can speak to this morning, what exactly is it that they've been feeling ever since Diwali night? We'll come back to you in just a minute, Akshat. Going across to Anil, who joins us from Ghaziabad. Anil, over to you. दिखाइए हमें गाजियाबाद में आज सुबह क्या नज़ारे हैं as far as pollution is concerned, and as जो AQI levels हैं in and around Ghaziabad. If you can take our viewers through those as well. देखिए, जब मैं आपको पहले तो आज का जो हालात है वो और बद से बदतर हुए हैं गाजियाबाद के। पहले तो अपने दर्शकों को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बताए थे कौन से क्षेत्र का कितना रहने वाला है गाजियाबाद का आज का। अभी का मैं बता दूं आपसे, वसुंधरा इलाके का 366 अभी का दर्ज किया जा रहा है, स्क्रीन के माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं, और इंदिरापुरम का 367 दर्ज किया जा रहा है, संजय नगर का 340 दर्ज किया गया है, और जो दिल्ली से सटा इलाका है लोनी का, वहां पर 360 दर्ज किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को स्क्रीन के माध्यम से हमने दिखाई। आखिरकार किस तरीके का हालात है आज गाजियाबाद में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सड़कों पर आज घनी धुंध सी देखी जा रही है। पॉल्यूशन की घनी चादर आज सड़कों पर दिखाई देगी। सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चारों तरफ हम आपको दिखाएंगे, कैमरे को मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज घनी धुंध पूरी सारी सड़कों पर आज दिखाई दे रही है। पूरे गाजियाबाद आज धुंध की चपेट में है, इस पोल्यूशन की चपेट में है। दरअसल आप देख सकते हैं जो वाहन स्वामी है, जो वाहन चालक है, अपनी हेडलाइट का उपयोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी आज बेहद कम आज दिखाई दे रही है। दूर दूर तक आप देखेंगे तो जो हल्के हल्के वाहन आपको दिखाई दे रहे होंगे आते हुए। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं सामने, कुछ तो इमारतें दिख रही होंगी, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेहद हल्की हल्की जो है इमारतें दिखाई दे रही हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हालात आज एक बार फिर गाजियाबाद के बिगड़े हैं। धुंध की घनी चादर आज सड़कों पर देखी जा रही है। फिलहाल सूर्य देवता ने दर्शन जरूर दिए हैं, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने दिखाया अपने दर्शकों को कि घनी धुंध के चलते आज विजुअलिटी भी गाजियाबाद में कम देखी जा रही है। वहीं लोगों की सांसों पर सीधा सीधा अटैक अब हो रहा है, क्योंकि दिवाली के 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी लगातार पोल्यूशन का स्तर घटा नहीं है।
बढ़ रहा है लगातार। दिवाली के दिन जरूर 155 का था सुबह के वक्त, और जैसे ही शाम के वक्त पटाखे जलाए गए, आतिशबाजी की गई, उसके बाद से लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में जरूरत है तो विशेष ध्यान देने की, चाहे वो सरकारें हो चाहे वो संस्थाएं हो, क्योंकि अब वो हालात एक बार फिर पहुंचते जा रहे हैं। जो पहले के हालात हो गए थे वही हालात एक बार फिर हो गए हैं। जरूरत है ग्राउंड जीरो पर काम करने की लगातार, क्योंकि जो ग्रैब 4 लागू है, ग्रैब 4 के नियम किस तरीके से लागू किए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर उनको लागू करने का समय अब आ गया है, क्योंकि लोगों का अब सांस लेना दुभर होता जा रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है बच्चे और बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिला अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि जो आसपास का वातावरण है बेहद खराब स्थिति में पहुंचा हुआ है। आप समझ सकते हैं, लगातार मैं इसलिए लोगों को अवेयर कर रहा हूं, लगातार हम न्यूज एक्ट की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर अपने दर्शकों को हर उस एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक कर ले, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का सवाल है। जी ओके अनिल, we'll come back to you shortly. Is Akshat with us on the broadcaster? Mahendra Mahi also with us. Let's please check on Akshat as well. Mahendra, if you can take our viewers through where is it you're standing and what is the pollution situation there? देखिए, फिलहाल मैं नोएडा में मौजूद हूं और यहाँ की जो स्थिति है कल के मुकाबले आज थोड़ी उसमें सुधार दिखी गई है। यानी कि कल जो पॉल्यूशन का लेवल था वो 350 के पार पहुंच गया था, और आज नोएडा में जो पॉल्यूशन है ऑल ओवर नोएडा की बात करें तो 270 या 300 के आसपास है। यानी कि थोड़ी इसमें जो पॉल्यूशन का ग्राफ उसमें कमी देखी गई है। मगर दूसरी तरफ देखिए, अचानक ठंड बढ़ गई, जिससे लोगों को अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ पॉल्यूशन, दूसरी तरफ ये जो ठंड की दस्तक है वो। फिलहाल नोएडा के तमाम ऐसे एरिया हैं जहां स्मॉग की चादर ज्यादा बड़ी है, वहां लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। जैसे ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादर की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहां पॉल्यूशन का लेवल अचानक जो बढ़ा है और वहां स्मॉग चादर ज्यादा बढ़ी है, जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है। क्योंकि आज सरकारी छुट्टी है, भाई दूज है, मगर कल की बात करें तो कल यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखा गया, जिससे काफी लोग परेशान थे। जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनकी आंखों में जलन की स्थिति हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मगर आप सोचिए, दीपावली वाले दिन आतिशबाजी के कारण आज ये स्थिति हो गई है। अगर आतिशबाजी ना होती, पटाखे ना जलाए जाते जहां पटाखे बैन है, तो आज नोएडा और एनसीआर का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत सामान्य होता, बहुत साफ सुथरा होता। मगर जैसा हमने देखा, धनतेरस वाले दिन जो पॉल्यूशन का लेवल था नोएडा एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में 100 से नीचे आ गया था। मगर देर रात जब दीपावली के दिन आतिशबाजी की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर आदेश था कि किसी तरह के कोई पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी पटाखे जलाए जाए, जिसका नतीजा ये रहा कि आने वाला अगला दिन, यानी कि जिस दिन गोवर्धन पूजा थी, उस दिन पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था कि पूछिए मत, स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी। यानी कि नोएडा के तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पॉल्यूशन का लेवल 450 के पार पहुंच गया था, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां एकदम बिल्कुल गंभीर श्रेणी हो गई थी। मगर अब थोड़ी राहत कल के मुकाबले आज मिली है, मगर जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तमाम पाबंदियों का जो पाबंदियां लगाई गई हैं, चाहे ग्रैब 4 की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, या रोडों पे जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ऐसे चौराहे जहां एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका कुछ ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा। पॉल्यूशन का लेवल बरकरार है जो कल था, और अचानक जो स्मोक की चादर है वो ज्यादा गाढ़ी हो गई है। यानी कि अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको धुंधलापन ज्यादा नजर आएगा, आपको सामने 100 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब अचानक ठंड भी बढ़ गई है। ठंड के कारण जो कोहरा है, एक तो कोहरे की मार, दूसरी तरफ जो स्मॉग है उसका एक, ये दोनों मिक्सचर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन और ये ठंड दोनों ही दिल्ली एनसीआर की जनता को परेशान कर रही है। क्योंकि देखिए, सुबह का वक्त है, धूप भी हल्की हल्की निकली है, मगर वो लोगों को राहत नहीं दे पा रही। क्योंकि जैसे हमने देखा कि पटाखे जलाने के बाद ये स्थिति बदली। कल भी कई जगह बहुत ज्यादा पटाखे जलाए गए, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा थी नोएडा में, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा आतिशबाजी की, देर रात तक आतिशबाजी की गई, जिसके कारण ये रहा कि देखिए नोएडा की जो हवा है फिर एक बार
हवा जहरीली हो गई, लोग परेशान है। जब लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने निजी काम के लिए, दफ्तर के लिए, तो लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रहा है, सांस लेने में वो उनको दिक्कत हो रही है। और ऐसे कई दमा के मरीज हैं, यानी जो बुजुर्ग है जिनको सांस लेने में पहले ऑलरेडी ही प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर का कंसल्ट कर रहे हैं कि आखिर अब हमें जी। Okay, all right, Mahindra. Thank you so much, Mahindra and Anil, for joining us. I'm going to quickly go back to Akshat. Akshat, you're at Rajiv Chowk. Take it away. If we've managed to speak to some people, how exactly is it that they're feeling this morning? Well, yes, we'll just quickly try to gain in perspective from some people out here in Rajiv Chowk as to how they feel about the pollution. Sir, आप यहाँ आते हैं जॉगिंग करने के लिए, तो कितना डिफरेंस दिख रहा है दिवाली के बाद? क्या आपको लग रहा है कि प्रदूषण बढ़ गया है? पोल्यूशन बढ़ गया है, गले में खराश, और मतलब हम जो है एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, मतलब दौड़ना भागना जो भी है एक्सरसाइज कम कर रही है, तो मतलब परेशानी आ रही है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यही बोल सकते हैं। पहले से कितना लग रहा है? अगर पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो आपको लगता है बढ़ गया है? पिछले साल अब वो तो कंपेयर करने वाले बताएंगे, जो ना जितना बढ़ गया मतलब कैलकुलेट करने वाले बता सकते हैं। So of course you heard one of the civilians also out here. They are saying that they are of course feeling some problems in their throat also, and yes, after Diwali the levels of AQI have risen and gone to the severe category. And as I was saying, the politics also is being played over it because the Aam Aadmi Party government has said that some of the BJP workers instigated people to burn crackers on the Diwali night, and BJP in its defense said that it will be foolish to say to attribute the rise in the pollution levels to crackers only, as the Delhi government failed to control the pollution. But meanwhile, if I tell you about the measures, then of course the graph 4 measures are will be continuing in the national capital, with BS3 petrol and BS4 diesel cars to be banned, and non-essential trucks carrying non-essential items will also be banned in the national capital. And also the parking fees in some of the areas and the NDMC areas have also been hiked, so that the people are encouraged to use their public transport instead of their private vehicles. Of course, some measures are being taken, but still it will be important to see as to when can people of Delhi heave a sigh of relief. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.